Surya Sharma. Welcome to Bollywood Life for the very first time. Yes, thank you so much. Thank you so much for calling me on Bollywood Life. It's my pleasure. But I want to start with this thing. I'm liking the beard that you're keeping. It's for the lockdown, or you normally keep this much? No, I normally keep my beard, and I'm preparing for the character also, the next project. Alright. So अभी 20 दिन से काम नहीं कर पाया क्योंकि I'm busy promoting Andeki, and I feel good. So अभी थोड़े टाइम में वापस again I'm going to get back to my character. All right. So I want to start with this thing, all right, Surya. I've been talking to a lot of people, and we've been talking about you a lot. Okay, in my circle, like the journalists, we've been talking a lot about you. I've been reading about you, and it's someone like you've come overnight as a star, which we want to look up to, right? I saw the series as well, and it was really amazing what you did in that. I want to know from your side, how's the response been so far? How are you receiving it? Imran, I never thought of it's kind of dream right now for me. Okay. Like people say I'm living my dream, so yes, I'm living my dream. मैंने कभी ये चीज नहीं सोची थी कि अनदेखी करते टाइम भी और करने के बाद भी और ऑन सेट भी कि रिंकू को मैं इस तरह से प्ले करूंगा कि आग लगा दूंगा. वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि टू गिव जस्टिस टू माय कैरेक्टर. जो मुझे मेरे राइटर ने मुझे एक कैरेक्टर दिया है, मेरे डायरेक्टर ने जो मुझे एक कैरेक्टर दिया है, जो मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे एक कैरेक्टर दिया है, तो मुझे उसको जस्टिस देना है. एंड यस, ओवरनाइट चीज हुई है. 10 जुलाई के बाद ऐसी चीज हुई कि आई एम गेटिंग मैसेजेस, इंस्टा, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेजेस एवरीवेयर. लाइक अब गलती से क्या हुआ है कि मेरा नंबर सर्कुलेट हो गया. So today morning I got like 3 calls. Rinku Paji, सीधा Rinku Paji. No Surya, nothing. Hi Rinku Paji. And I was like, no, I'm not Rinku Paji. नहीं आप बोल रहे हैं Rinku Paji. So they check my WhatsApp DP. So अभी क्या है कि वो promotion की वजह से वो Rinku Paji की DP भी लगी हुई है. So they calling back again and then saying कि please talk to us. But ये है कि मैं थोड़ी बात मैं नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं I'm living with my brother. I'm in Chandigarh these days. Okay. So उनको मैं फोन दे देता हूँ. मैं साइड में बैठा रहता हूँ. So उनकी जो प्यार है ऑडियंस का वो लेता हूँ and relax. Wow, it will be overwhelming, because being an actor, all you need is like people to appreciate your character, the work that you're doing, and it's been recognized right now. And yes, people are talking about it. So let's talk about that as well. Crime thriller for now as an OTT platform, it's like a boom. Take it Patal Lok, take it Sacred Games, and now Andeki has joined the league. Andeki is coming in the league where you have it's one of the most what you can say is like crime thriller to watch for right now. How does that make you feel when you come in the list of such high-ranking crime thrillers like Sacred Games, Patal Lok, and people start talking about the series? What does that make you feel as an actor? I have 2 points of view on this thing, right? First is I feel blessed to be part of Andeki. Second is जो मेरा हार्ड वर्क था वो अभी पे ऑफ कर रहा है. तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि एक तरफ मैंने मेहनत की थी, कोशिश करता था कि कुछ ऐसी चीज हो जाए मेरी लाइफ में कि मुझे ऐसा एक प्रोजेक्ट मिले और मैं ऑडियंस को अपना क्राफ्ट दिखा सकूं, अपना टैलेंट दिखा सकूं, और अंदेखी ने वो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है. एंड आई एम लविंग इट कि द फैक्ट अंदेखी, पाताल लोक और काफी सारी जो क्राइम थ्रिलर्स हैं उनके साथ रखा जा रहा है. व्हाट आई लाइक अबाउट अंदेखी इज कि वो एक इंसिडेंट से शुरू होता है. लाइक ऐसा नहीं है कि वो स्टोरी है पॉलिटिशियंस की और दिस एंड दैट the old Gangs of Wasseypur drama is happening, क्योंकि वही सारी अभी चीजें चलती आ रही है. Like I'm a big fan of Anurag Kashyap sir, so उनके भी मैं देखता रहता हूँ IGTV वीडियोस. तो he's saying कि Gangs of Wasseypur बनाने में लगे हुए हैं सारे. So जो कि मुझे लगता है कि Gangs of Wasseypur बनाने में ही लगे हैं. But Andekhi is different. Andekhi की अगर आपने देखा होगा टीजर में ही फर्स्ट टाइम ही दिखा दिया है who's killing a girl. था डन, ऑडियंस को दे दिया है, पकड़ो. But the story is something जो कि आपको edge पे रखेगी कि what is happening now. And अंदेखी में स्टोरी हीरो है. इसमें कोई हीरो नहीं है, स्टोरी हीरो है, उससे कैरेक्टर्स बनते हैं. और मैं कभी भी कैटेगराइज नहीं करता हूँ अपने आर्ट को, अपने क्राफ्ट को कि आई एम प्लेइंग अ लीड, आई एम प्लेइंग अ एंटागनिस्ट, आई एम प्लेइंग अ प्रोटैगनिस्ट. नथिंग लाइक दैट. आई वर्क हार्ड फॉर माय कैरेक्टर्स. लाइक इफ यू हैव वॉच्ड दिस सीरीज कॉल्ड हॉस्टेजेस, तो मैं उसमें भी मैंने काम किया. तो उसका मेरा एक अलग प्रोसेस था अपने क्राफ्ट को लेके. अंदेखी के लिए एक अलग प्रोसेस था अपने क्राफ्ट को लेके. तो आई एम जस्ट हैप्पी यार, रिएक्शन बहुत अच्छा है. तो यही सब चीजें हैं कि खुश हैं बस. एंड माय फैमिली इज हैप्पी, सो आई एम हैप्पी.
All right. Okay, so जैसे आपने process की बात की, I also want to talk to you about your process because मैंने काफी चीजें पढ़ी है उसके बारे में. But also thing I read is like you are not a social person. You don't like to go out and socialize with people. You like to stay inside and work on your craft, right? But the character that you're playing, Rinku, as soon Right. as he enters the room, okay, everyone starts noticing him. It's totally different what you are right now. So did you kind of escape in your character like that and you try to explore things which you wouldn't have done as Surya and you didn't as Rinku? Oh, I'll start from where? I did a workshop with Manoj sir, right? Okay. And Manoj sir ने क्या किया था उस वर्कशॉप में 18 स्टूडेंट थे, उनमें से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आपने जो सत्या में था इतना अलग बीकू मात्रे का रोल कैसे किया, इतनी नेगेटिविटी थी लेकिन तब भी लोगों ने आपको पसंद किया. तो मनोज सर ने बोला था कि हर इंसान में 1% का एक इमोशन होता है. हर एक इंसान परवर्ट थिंकिंग का होता है, बट सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, इसलिए हम सोचते हैं वहां तक जाने की, लेकिन हम अपने आप को रोक लेते हैं. तो उन्होंने जिस वे में बोला, कुछ लोगों को कैसे समझ आया मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह मुझे समझ आया वो मेरे लिए एक गुरु मंत्र था. आई वाज लाइक दिस इज समथिंग जो कि क्रैक करना पड़ेगा. ये लेवल ऑफ थिंकिंग एंड द क्राफ्ट आई वांट टू रीच. और अनदेखी में और रिंकू में ये चीज एक अच्छी थी कि उसमें कुछ सिमिलैरिटीज थी जो सूर्या से मिलती थी. सूर्या से जो मिलती थी वो एक था कि जो उसके फादर की तरफ एक प्रोटेक्टिवनेस है और एक प्यार है. वो चीज मेरी भी अपने फादर को लेके बहुत I'm very much attached to my father, and whatever I am today is just because of my father, because he supported me from the day one. जब से मैंने एक्टिंग शुरू की है, और वो बॉम्बे आके नहीं शुरू की है, वो मैंने बचपन से शुरू की है. 3rd स्टैंडर्ड में था जब मैंने फर्स्ट टाइम प्ले एक किया था, तो उन्होंने तब से मुझे सपोर्ट किया. तो एक वो इमोशन था जिसके ऊपर मैंने सोचा था कि आई कैन प्ले, इसको अच्छे से और बढ़िया कर सकते हैं कि ऑडियंस एक ह्यूमन देखे. ये जरूरी नहीं है कि और स्क्रिप्ट ने आप आधा काम तो स्क्रिप्ट आपकी कर देती है ना, आपको डायलॉग्स ऐसे दिए होते हैं, बट अगेन आपका काम क्या है कि उस स्क्रिप्ट में एक चार्म कैसे लेके आओगे जिससे कि ऑडियंस कनेक्ट करे रिंकू के साथ. द बेस्ट पार्ट ऑफ रिंकू राइट नाउ इज पीपल कनेक्टिंग टू हिम, एंड वो इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं. आई एम गेटिंग मैसेजेस लाइक कि काश मेरा बड़ा भाई रिंकू जैसा होता. सो व्हाट एल्स यू वांट? मतलब इससे बड़ी चीज मैं तो कोशिश कर रहा था कि उस बंदे को ढूंढ के मैं बोलता हूँ कि भाई तू आजा, तू मेरा छोटा ही भाई बंदे, कोई बात नहीं. सो ये ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे नहीं पता मैं कभी और ऐसा कैरेक्टर क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. उसके बारे में मैं फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ, बट मैंने रिंकू में ये अचीव कर लिया है एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट. प्लस एक जो रिंकू में अथॉरिटी है वो मेरे बोर्डिंग स्कूल से आती है. मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, तो आई वाज हेड बॉय इन माय हॉस्टल. तो मैं जब 11th में था तो मैं हेड बॉय बन गया था, एंड आई वाज हैंडलिंग 12th के स्टूडेंट्स को भी. तो द आर्ट ऑफ बीइंग अथॉरिटेटिव इज समथिंग व्हिच यू हैव टू लर्न. वो ऐसा नहीं है कि आपको अथॉरिटी दे दी और हाँ जी चलो ठीक है हो जाएगा. लाइक आईएएस ऑफिसर्स, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनको पूरा एक तरीका दिखाया जाता है, सिखाया जाता है. क्योंकि आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली, लॉट ऑफ पीपल आर लाइक इन माय फैमिली दे आर इनटू आर्मी. तो वो एक चीज समझ आई मुझे कि ये सब आप अपनी मेमोरीज, अपना एक्सपीरियंस लेके किस तरह से उसको बना सकते हैं. प्लस इफ वी टॉक अबाउट द डिमीनर, यू वर सेइंग कि रिंकू एंटर करता है एंड एवरीबॉडी इज लाइक व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट. वो एक चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि इन रियल लाइफ आई एम नॉट लाइक दैट. मैं आता हूँ, शांति से बैठता हूँ, पता भी नहीं चलेगा सूर्या बैठा है, लोग क्रॉस भी कर जाएंगे, हाँ जी बैठा हूँ शांति से, वैसे लगा. बट जब हमने वर्कशॉप शुरू की एंड सिद्धार्थ सिंह गुप्ता जो राइटर हैं सर, उन्होंने मुझे बोला था सेकंड मीटिंग में मुझे बोला था कि हैव यू सीन स्कारफेस? मैं हाँ जी मैंने देखी है. तो अंदर से मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये बात कहाँ तक जा रही है. अल पचिनो इज अ लेजेंडरी एक्टर एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उस लेवल का कर पाएगा टोनी मोंटाना कभी भी लाइफ में. तो उन्होंने बोला कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए मुझे, और उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी लेके कैसे आऊं. बट ओवर द टाइम वी वर डूइंग वर्कशॉप, वी वर डूइंग मॉक शूट्स. तो कुछ ट्रेट्स होते हैं एक्टर के, लाइक ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग. यू गो टू एनी वर्कशॉप, फर्स्ट 3 थिंग्स दे विल से कि ऑब्जर्व, लिसन एंड अवेयर. सो हम सुनते हैं वो, लेकिन लोग काम नहीं करते हैं उसके ऊपर कि वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है. बट यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है. लिसन व्हेन यू आर डूइंग अ सीन, listen to your co-actor, listen to the sound, listen to every single thing. You will find something which will create magic in the end. So
ये सब चीजें हैं. That's what these are my process, you can say that. Very informative. Seriously, Surya, I got to learn a lot of things. You know, I've been talking to actor for a very long time, and I try to pick few things, whatever actors say, and I could pick like three or four things, whatever you said. The Manoj Bajpayee says, what he taught you. Now it's gonna like stay in my head, and I'm gonna talk about it all the time. Okay, let's talk about it as a platform. All right, now just tell me, what do you think the platform, what we are right now on, like OTT platform, take Amazon, Netflix, Z5, whatever you take. What do you think about such platform? And do you think this platform is so brave right now that it's gonna take over cinema, or do you think it's gonna coexist with cinema, but OTT will play on the front foot and cinema is gonna take the back foot? What do you think about that? I think OTT is playing on front foot right now. Okay. Like if we talk about the present time, अगर ये कोरोना और कोविड का भी टाइम नहीं होता तो तब भी OTT मतलब कहीं ना कहीं चल रहा था, 7 फिल्म्स एंड थिएटर एंड प्लस OTT. अब क्या हुआ है कि आफ्टर वाचिंग नार्कोस, लाइक OTT का बूम कहां से आया है? नेटफ्लिक्स में नार्कोस आया था एंड एवरीवन इज लाइक ओ वाओ, नार्कोस नार्कोस नार्कोस. अब नार्कोस में पॉइंट ऑफ व्यू सबका खुल गया, सबको पता चल गया कि क्या रियलिटी है, कैसी चीज दिखाते हैं लोग बाहर के देशों में और या कहीं और का जो सिनेमा है वो कैसा चलता है. तो उसके बाद क्या है कि लोगों को पसंद आ रहा है जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, करेक्ट, जो रियलिटी है सोसाइटी की, तो लोग वो देखना चाहते हैं. एंड फिल्म्स में क्या होता है ना, कुछ सेंसर हो जाती है चीजें, कुछ नहीं दिखा सकते, सबके अपने अपने चीजें हैं. स्टिल अनुराग कश्यप सर एक ऐसे हैं जो कि बहुत एक फिल्म्स में भी अपनी रियलिटी दिखा देते हैं कहीं ना कहीं जाके. तो उनकी भी कई सारी फिल्म्स है जो कि अभी अटकी होंगी सेंसर बोर्ड पे, जो मुझे लगता है. तो ऐसी ये सब चीजें. एंड पर्सनली एज एन एक्टर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इतना इस चीज के ऊपर कि OTT और फिल्म्स का क्या है, क्या सिनेरियो है. और मुझे लगता है कि हमें ध्यान देना भी नहीं चाहिए इस चीज पे. हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा क्राफ्ट, अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो, काम करो. आप अभी OTT पे हो, यू नेवर नो व्हेन यू गोना गो टू फिल्म्स. सो बोथ आर लाइक अ मीडियम ऑफ सिनेमा इन द एंड. तो आपको इधर भी काम करना है, उधर भी काम करना है. मेरे लिए वही चीज है. बाकी ऑब्वियसली OTT इस टाइम पे बूम पे है क्योंकि फिल्म्स आर कमिंग ऑन OTT. तो यस, I understand. I get your point right now. Okay, I just also want to discuss with you another point is like, Surya, you've been in the industry for quite some time now, you know. Industry has been divided into outsider and insider. So what people might call you in the industry is, they call you by a name called an outsider or something like that. So tell me, where do you stand on this insider and outsider debate? And what do you think about this power structure right now that we have in the industry? How do you deal with that as an actor? Oh, I've been through this lot. मतलब मैं कई फिल्मों से मैं ऐसा होता था कि मैसेज आता था कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, दिस एंड दैट, डायरेक्टर रियली लाइक यू, एंड द अदर डे आई गॉट अ मैसेज कि सॉरी वो किसी और को मिल गया, somebody else is locked. So अब क्या होता है ना, इनसाइडर आउटसाइडर, अभी half of the industry is still an outsider. Correct. But they're working from past 35 years, 40 years. So that's why people call them insider. I was watching, कल ही मैं YouTube ऐसे scroll कर रहा था and I come across one of the interview of Sonu Sood. तो उन्होंने बोला कि insider outsider बोलते मुझे तो समझ आया नहीं, लेकिन ये है. अब उन्होंने बोला कि मेरे लिए outsider था, अब मेरे बच्चों के लिए वो insider हो जाएगा. Correct. So it's like that. मतलब अभी इस चीज पे अगर मैं सोचूं कि मैं insider हूँ, outsider हूँ, अब these days people recognizing me, they gave me a validation of an actor. अब लोग मुझे बोल रहे हैं कि हाँ तू successful हो गया है. I don't call it success. Success is something else for me. I'm happy कि इन लोगों ने मुझे एक validation दे दिया है कि yes you are an actor. और उसी लिए मैं बॉम्बे में आया था. अब एक और मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है एंड जहां मैंने जाना है वो अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है. मेरा एम बहुत आगे का है और आई होप कि मैं सबको खुश कर सकूं अपने काम से और वहां तक पहुंच सकूं. Inshallah, you do that, man. We can see your craft and we can see how you play and what kind of an actor you are right now in the industry. And we need such actors in the industry right now. So thank you so much for performing Rinku for us. Best compliment. Oh, seriously? Best compliment I have. Yeah. Thank you for playing Rinku for us. I was like, oh man, this. No, I'm a big fan of cinema, sir. So, you know, whatever I see on cinema and whatever thing inspires me, I talk a lot about it and I try to appreciate it and I say it on the face. You have to appreciate people and they should know that you're appreciating them. You know, I like that. Yes. It's amazing chatting with you, man. So, yeah, thank you so much for giving your time. You know, I'm looking forward to your work again and we'll do this in person when this lockdown is over. And
Let's catch up again. Definitely. और मजा आया आपसे बात करके. It's like very friendly zone. So I'm happy like you taking an interview. So definitely Thank we're you so gonna much, meet. man. Thank you so much. Looking forward to your work, man. Sure. Best of luck, and I'll see you soon. Yeah. Yes. Okay. Take care. Bye bye. All the best. Bye.